نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں اور ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بنیں. تو الحمدللہ ہم نے اب تک کے دیکھا کہ سورہ حدیبیہ کے بعد جب قریش کے ساتھ دوستانہ تعلق ہو گئے اور سب امن تھا، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، خطوط لکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے. تو اس میں سے کچھ نے ایکسیپٹ کیے، اسلام میں آ گئے، اور کسی نے نیوٹرل رہے جو انہوں نے کیا کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو تحفے تحائف بھیجے لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیے. اور کسی نے کیا کیا، قبول بھی نہیں کیا اور اس نے غلط جواب دیے تو اس کے کنگڈم کا کیا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد ہم نے ایک دو یہ بھی دیکھے غزوہ. اب اس کے آگے انشاءاللہ ہم جائیں گے. اب کیا تھا کہ اب حالت ایسے تھے کہ قریش لوگ کے ساتھ کیا ہو گئی تھی، صلح ہو گئی تھی. تو جو غفتان کے جو قبیلہ تھا وہ بھی زیادہ سرگوشی نہیں کر رہا تھا، لیکن جو یہودی لوگ تھے وہ باز نہیں آئے تھے. ان لوگ یہی تھے جنہوں نے خندق کی جنگ کو کے لیے تیار کیے تھے، سب کو، سارے قبیلے کو، قریش کو اور سارے لوگوں کو ایک ساتھ جمع کر کے لے کر آنے والے سب یہی لوگ تھے. تو یہ یہودی لوگ تھے، وہ کیا کر رہے تھے، کچھ نہ کچھ ان لوگ ابھی بھی لگے ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہے نا اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے، صلح کے لیے بھیجا جاتا تھا کہ صلح میں آ جاؤ، ساتھ میں اچھے سے رہو. لیکن ان لوگ ہے نا کچھ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ کارنامے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دینے کا اور مسلمانوں کو نقصان دینے کا کچھ نہ کچھ کام ان لوگ کیا کرتے تھے. آگے سے نہیں تو پیٹ پیچھے ان لوگ کے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ان لوگ کی پلاننگ چلتی رہتی تھی کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف دی جائے. تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچے کہ اب کیا ہے، ابھی ان لوگ کو لاسٹ کیا ہے، ان کے ساتھ جنگ ہی کرنی پڑے گی. جب ان کو اتنا سمجھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ ہمارے ساتھ اس میں آ جاؤ، معاہدے میں آ جاؤ، پیس ایگریمنٹ میں آ جاؤ، لیکن لوگ جب نہیں سن رہے تو آخر میں کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا، ہم کو جنگ کرنا پڑے گا. تو اب یہ جو یہودی لوگ تھے ان لوگ کا جو سب سے بڑی جو جگہ تھی، جو ان لوگ کا مین جگہ تھی، وہ کیا تھی، خیبر تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، خیبر کی طرف کوچ کرنے کا پلان بنا لیے اور اپنے لوگوں کو لے کے وہ خیبر کی طرف جانے کے یہ کر لیے، اپنے صحابہ کو بول دی. یہ جو تھا وہ جو محرم کے مہینے میں خیبر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے. جب وہ نکلے تھے، اور یہ اس کے بارے میں ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہے نا آیت نازل کی ہے کہ آپ کو ہے نا وعدہ دیا گیا ہے کہ وہاں پہ آپ کو ہے نا بہت سارا مال غنیمت ملے گا اور وہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی. اب لیکن اب اس میں یہاں پہ جو تھے نا، جو منافق تھے نا، تو منافقوں کو جو تھے نا منع کر دیا گیا تھا کہ جب خیبر کے لیے کچھ کرنے والے تھے تو منافق جو تھے، جو لوگ آئے نہیں تھے پہلے، تو حدیبیہ کے لیے جب آئے نہیں تھے ان لوگ، مطلب جو عمرہ کرنے کی نیت سے آئے نہیں تھے، تو ان لوگوں سارے لوگوں کو منع کر دیا گیا. جو صرف مومن تھے ان لوگ کو ہی ہے نا خیبر کی کوچ میں لیا گیا تھا. اب یہاں پہ اور ایک بات کیا، جو خیبر جو تھا نا وہ ہے نا مین پوائنٹ تھا، مطلب مین سٹی تھی یہودیوں کی. تو یہودی کیسے تھے، یہودی لوگ بہت مالدار تھے، ان لوگ کے پاس پیسہ بھی بہت تھا، ان لوگ کے پاس پیسہ بہت تھا. تو دیکھو ابھی جنگ کے لیے جب جا رہے ہیں تو جو منافق ہے نا تو ان کو بھی اس جنگ میں جانا تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر مسلمانوں کی فتح ہو گئی تو ان کو کیا ملے گا، مال غنیمت بہت زیادہ ملے گا. تو اس نیت سے منافق بھی جوائن ہونا چاہتے تھے، لیکن ان لوگ کو صاف صاف منع کر دیا گیا ہے کہ نہیں، جب تم اس طرف نہیں آئے، جب عمرہ کی نیت سے جب گئے تھے مسلمان لوگ تب تم لوگ نہیں آئے، اور پھر وہاں پہ حدیبیہ کی ٹریٹی ہوئی، وہ سب ہوا، تو جب تم اس وقت نہیں آئے تو ابھی بھی کیا ہے، ابھی بھی تم کو نہیں آ سکتے، تم لوگ کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کر کے. تو صرف جو لوگ عمرہ کی نیت سے نکلے تھے اور جو سچے مومن تھے صرف ان کو ہی اجازت ملی، تو اتنے ہی لوگ گئے تھے. تو اتنے لوگ کے قریب یہاں پہ بتائی جاتی ہے گنتی کہ 1400 آدمی لوگ گئے تھے. ان لوگ ہی صرف
खैबर के लिए रवाना हुए थे। और रवाना होने के वक़्त नबी वसल्लम ने सीबा बिन अरफ़ात अल-गिफ़ारी को क्या किया था, वहाँ का इंचार्ज बना दिया था। अब ये देखो, ये यहूदियों की बात जब आ रही है, तो अब हम देखते हैं, थोड़ा मैं उनका थोड़ा-सा पीछे का बैकग्राउंड हिस्ट्री बताना चाहूँगी, कि देखो ये यहूदी लोग जो थे वो अहले किताब थे, उन लोग के पास किताब थी, उन लोग के पास सब कुछ था, सारे नबी इनमें से आए थे। लेकिन फिर क्या बात हुई, क्या वजह हुई कि जो आखिरी नबी है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनमें से नहीं भेजे और यहाँ पे से इसमें से आ गए अरब में से। तो ये जो थी, ये बात क्या थी कि इन लोग जो थे, जो अहले किताब होने के बावजूद इन लोग ने क्या किए थे, बहुत सारी नाफरमानियाँ किए थे। तो ये है ना, ये हमारे लिए इबरत है, जो अहले किताब ने किए थे और आज हम देखेंगे कि जो-जो गलतियाँ वो करते थे, वो आज है ना, बहुत दुःख से बोलना पड़ता है कि वो बहुत सारे काम हम खुद अभी आज हम हमारे मुस्लिम उम्मत हम खुद वो सब कामों में ये है। तो अहले किताब उनके पास किताब दी गई थी, दीन दिया गया था, लेकिन इन लोग ने क्या किया, उसकी कदर नहीं की। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में इसके बारे में बताते हैं कि ये जो अहले किताब है, इन लोग ने क्या किए, अपनी किताबों को पीठ पे लाद दिए, जैसे कि गधा उसका बोझ उठाता है। मतलब सिर्फ किताब है, अभी देखो गधा जो है उसके पीठ पे किताब है तो उसको थोड़ी पता है, कुछ भी जो वजन चीज है, कुछ अच्छी भारी चीज भी है तो उसको कुछ नहीं पता है कि क्या है उसमें, कितना अनमोल चीज है, कितना भारी है। उसके लिए तो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ एक वजन है। तो ये इन लोगों ने भी उसका हाल ऐसे ही किया। उन्होंने क्या करे, किताब को सिर्फ एक वज़न की चीज़ समझ के रख लिया और उसके जो हुकूम थे और उसके जो फ़राइज़ थे, उन्होंने क्या करे, उसको अपनी मर्ज़ी से बदलते गए। तो ये सबसे बड़ी गलती थी। फिर ये इन लोग इतने गलत होने लगे, दुनिया परस्त में इतने गु गु ये हो गए कि इन लोग ने क्या करे, इन लोग इतनी हद से पार हो गए। इन लोग ने अपनी हद से आगे बढ़ गए और इन लोग यहाँ तक कि इन लोग ने हद से बढ़ गए कि इन लोग ने नबियों के कत्ल में भी शामिल हो गए। अब थोड़ा हम बैकग्राउंड लेते हैं, ये जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लेकर आए थे इन लोग को बचा के, और ये अहले किताब को जब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और उनको फिलिस्तीन में जब उनको दाखिल करो करके बोले गए, तो इन लोगों ने सब वहाँ पे क्या कर दिए, मना कर दिए कि तुम और तुम्हारे रब जाओ और लड़ो, हम तो नहीं लड़ेंगे। फिर इसके वजह से इन लोग को 40 साल इसमें पूरा भटकना पड़ा। और 40 साल के बाद इन लोग क्या हो गए, फिर फिलिस्तीन में फतेह हासिल करके अंदर गए, यूशा इब्ने नून के इसमें गए। लेकिन अब इन लोग अंदर जाने के बाद क्या हुए, इन लोग ने, जो वहाँ के लोग, जो रहने वाले लोग थे, कबीले के जो लोग थे वहाँ पे, जो पहले से बसे हुए थे, और उन लोग क्या थे, बुत परस्ती करते थे, उन लोग के अलग-अलग ये थे। तो उन लोग है ना, ये अहले किताब क्या हो गए, उन लोग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए। उन लोग ने क्या करे, अपने रिलीजन को, अपनी किताब को आगे बढ़ाने के बजाय इन लोग ने क्या करे, वो कल्चर, वो सारी चीज़ें अपना ली। मतलब फिर से इन लोग शिर्क में मुलवसिस हो गए। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या किया, जब इन लोग ये शिर्क में इन लोग हद से बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो क्या हो गया, इनका भी ज़वाल आने लग गया। इनका ज़वाल आ गया और इन लोग को एक बख्त नज़र करके जो राजा था, उसने इन पे हमला कर दिया और इन लोग को, पूरे यहूदियों को क्या कर दिया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। फिर इन लोग में थोड़ी, इन लोग में गैरत जागी और इन लोग में कुछ थोड़े अच्छे लोग हुए, सही हुए, और फिर इन लोग ने क्या किए, वापिस से इनको एक नबी दिया गया, जिसके इनकी आदत में इन लोग ने वापिस से फिलिस्तीन में वापिस से इन लोग चले गए। लेकिन फिर वैसे ही हुआ, थोड़े दिनों के बाद फिर इन लोग जब अच्छे से रहने लगे, तो वापिस से इन लोग ने क्या करने लगे, गलत-गलत कामें करने लगे, तो फिर वापिस से क्या हो गया, वापिस से इन पे ज़िल्लत डाल दी गई। फिर वापस से किसी एक राजा ने इनको क्या किया, पूरा इन लोग को ये कर दिया। इन लोग ने जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे, जो इन लोग, जो हम लोग तो मस्जिद बोलेंगे, इन लोग टेम्पल बोलते हैं, जो इन लोग ने टेम्पल बनाए थे, और इन लोग उसको ये किया करते थे, इन लोग का मेन जगह थी इबादत की, वो पूरी की पूरी तबाह कर दी गई। सिर्फ एक दीवार जो बची है, जो आज तक की बची है, जिसको इन लोग वेलिंग वॉल बोलते हैं, वो आज तक की बची है। तो इन लोग को फिर से क्या कर दिया गया, पूरा तितर-बितर कर दिया गया और ये पूरी जगह फैल गए। और ये क्यों हुआ इनके साथ इस तरह से, क्योंकि इन लोग बहुत इतने आगे बढ़ गए थे कि इन लोग है ना, अपने नबी के कत्ल में भी इन लोग ने ये कर लिया, मतलब गलत काम करते थे। जो मूसा अलैहिस्सलाम से जो किताबें, जो उन लोग को फरमान मिला था, उसको अपनी मर्ज़ी से इन लोग ने तोड़े-मोड़े और अपने-अपने ख्वाहिशात के हिसाब से उसके रूल्स बना दिए गए। फिर जब है ना, इन लोग, इतनी खराब हो गई थी कौम कि इन लोग ने क्या किया, याह्या अलैहिस्सलाम, उनका भी कत्ल कर दिए। और फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम आए, और ईसा अलैहिस्सलाम भी, जो इन लोग गलत काम करते थे,
उनके बारे में इनको पॉइंट आउट करने लगे, तो इन्होंने क्या किए, इन लोगों ने पूरी कोशिश कर दी है कि उन लोग क्या करें, ईसा अलैहिस्सलाम का भी कत्ल कर दें। अब ये हमारा यकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं कर दिए गए, लेकिन जो क्रिश्चियंस उन लोग का यकीदा क्या है कि उनको कत्ल कर दिया गया था। तो इन लोग वहाँ तक की हद तक के पहुँच गए थे कि उन लोग नबी को भी कत्ल करने के इसमें आ गए थे। तो इसलिए इन पे क्या हो गई, इतनी लानत और ये सब ये हुई है इसलिए। तो आज हमको ये सारी चीज़ों से क्या करना है, हमको सबक लेना है कि देखो इतनी ये कौम, इतनी पढ़ी लिखी कौम और उसपे इतना रहम था अल्लाह का, इतना ये था कि इतने सारे नबी और अंबिया इनमें से आए, लेकिन क्या हो गया, इन लोगों ने उसकी कदर नहीं की, तो क्या हो गया, इनको हटा दिया गया। मतलब उस वक्त नबी वसल्लम के आने से पहले यहूदी जो थे, उन लोग के हाथ में क्या थी, खिलाफत थी, मतलब सब कुछ उन लोग के हाथ में था। उन लोग एज़ ए लीडर्स थे, लेकिन इन लोग ने गलत काम किए तो अल्लाह सुब्हान ने क्या किए, उनको हटा के किसको ला लिए, मुसलमानों को ला लिए। तो ये बात है ना, हमको भी बहुत गौर व फ़िक्र करने की, अगर हम भी इनके ही नक्शे कदम पे चलेंगे तो अल्लाह ही हमारी हिफाज़त करे कि हमारे साथ क्या होगा। और नबी वसल्लम की एक हदीस भी है कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि मुसलमान है ना, इतनी मुशाहिबत करेंगे लोगों की, यहूदी और नसारा की इतनी मुशाहिबत करेंगे कि जैसे एक पैर के 2 जूते, इतने हम लोग मिलके चलेंगे। हम लोग जैसे करेंगे हम लोग वैसे करेंगे। तो आज हम हमारी ज़िंदगी में गौर करते हैं, तो हम कितनी चीज़ें जो है हम पूरी वेस्टर्नाइज़ की कॉपी करते हैं। उनके तरीके हमको अच्छे लगते हैं। आजकल तो हमारी शादियों में, हमारी हर चीज़ में, हर छोटी-सी दावतों में, इसमें उसमें हमारे सारे तरीके ऐसे-ऐसे कैसे होते जा रहे हैं, उनके होते जा रहे हैं। तो जहाँ तक कि हमसे हो सके, जितना भी हमसे हो सके, हम क्या करेंगे, अपनी चीज़ों पे रहेंगे और जहाँ तक कि जितना कम कर सकते हैं, जितने हम इनसे बच सकते हैं, इसी तरीकों से, इनके लिबासों से और इन लोग की चीज़ों से, उतनी हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, इन सब से हम आपको बचाने की कोशिश करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में भी इसके बारे में अर्ज़ किए हैं। फिर इसके बाद यहो जो मुनाफ़िक है उसके लिए बोल दिया गया था कि ये लोग जो थे, ये लोग पहले बैठे रह गए थे ना, इसलिए अभी क्या है ना, इनको इजाज़त नहीं है, ये नहीं आएँगे जंग के लिए करके। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 आदमियों को लेके कूच के लिए निकले। अब जब ये निकल चुके हैं, तब जो मुनाफिक लोग थे, फिर यहाँ पे वापस से इन लोग ने क्या किए, वापस से अपनी चालें चले और है ना, यहूदियों को खबर पहुँचा दी उन लोग ने पीछे से, कि है ना, तुम लोग क्या रहो, होशियार रहो, कि क्या होने वाला है कि मुसलमान जो है, तुम पे हमला करने के लिए आने वाले हैं, तो तुम लोग क्या करो, तैयार रहो करके उन लोग ने वार्न करके रख दिए यहूदियों को। और इसके बाद है ना, इन लोग ने, यहूदी लोग ने क्या करे कि जो गफ्तान का जो कबीला है, जो उन लोग के हमेशा साथ देता था, तो उसको उन्होंने खबर पहुंचा दी है कि क्या करो, तुम अभी हमारे साथ है ना, हमारी हेल्प करने के लिए आओ करके, हमारी हेल्प करने के लिए आओ करके उसको खबर पहुंचा दी। अब नबी सल्लम है ना, अभी ये आर्मी पूरी क्या कर रही है, कूच कर रही है खैबर की तरफ जाने के लिए। तो उन लोग ने रास्ते में एक अर रजी करके जगह है, वहां पे उन लोग ने क्या किए, कैंप किए और फिर उन्होंने क्या किए, एक है ना, नबी सल्लम ने क्या किए, जो रास्ता दिखाने वाला होता है ना, गाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी मदद ली और उसको बोले कि हम, मुझे क्या करो, मुझे है ना रास्ता बताओ कि मैं है ना खैबर की तरफ पहुंचूं, लेकिन मैं है ना मदीना की तरफ से नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ से जाना चाहता हूँ, शम्स की तरफ से जाना चाहता हूँ। तो इसमें क्या थी, नबी सल्लम की ये हिकमत थी कि मदीने के रास्ते से नहीं जाना था उनको, उनको जो था शम्स के रास्ते से जाना था, क्योंकि जो शम्स से उनको जो मदद मिलती थी यहूदियों को, तो वो क्या हो जाती थी, जब बीच में इन लोग का जब जाएंगे सैनिक लोग, तो वो क्या हो जाती थी, वो एड, वो मदद कट जाती थी। तो इसलिए नबी वसल्लम ने क्या किए, शम्स के रास्ते से जाने के लिए वो गाइड को बताए। तो वो गाइड ने 4 रास्ते बताए। तो 4 रास्ते में क्या हुआ, नबी वसल्लम ने पहला, दूसरा, तीसरा जो भी उसने रास्ता बताया, उसको क्या करे, उसको मना कर दिया और चौथा जो रास्ता था उस पे वो चले। अब चौथा रास्ता चलने के बाद फिर है ना, नबी वसल्लम जब इन लोग रास्ते में चल रहे थे, तो एक है ना सलमा बिन अल-अक्वा जो थे, वो है ना अभी मतलब रास्ते में इन लोग चलने के लिए, इन लोग का हौसला बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, इन लोग शायर पढ़ते थे। तो बहुत वो अच्छे अच्छे शायर पढ़ रहे थे, हम दो सना के शायर पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे शायर पढ़ रहे थे, अशार पढ़ रहे थे। तो नबी सल्लम ने पूछे कि ये कौन पढ़ रहे हैं, तो बताया गया कि सलमा बिन अकवा पढ़ रहे हैं। तो उस पे नबी सल्लम ने बोले
کہ उन्होंने उनकी तारीफ भी करे और उनके बारे में बहुत अच्छा बोले, तो आके उसके अल्लाह पे रहम हो। तो जितने भी सहाबी लोग थे जो और दूसरे लोग थे ना, वो समझ गए कि ये जो है ना, इनको जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बोल दिए कि अल्लाह उन पे रहम करे और ये सारी बातें अच्छी बातें बोले, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, इनको शहादत का मर्तबा मिलने वाला है, कि मतलब ये क्या हो जाने वाले, शहीद हो जाएंगे। और देखो, अगर हम एक सोल्जर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब ये हम लोग को ऐसा लग रहा है कि मतलब ये शहीद हो जाएंगे तो ये अच्छी बात क्या है, लेकिन एक वहाँ पे मुस्लिम सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे कि वो जा रहे हैं जंग में, तो वो क्या सोचेंगे कि जंग में जा रहा हूँ तो मेरी फतेह होनी चाहिए, मैं जीतना चाहिए, और सबसे जो मेन, जो सबसे जो लास्ट पॉइंट होता है, वो क्या हम लोग पसंद करते हैं, शहादत पसंद करते हैं। अल्लाह के नाम में जितना इसका इतना बड़ा दर्जा है, शहादत की मौत पसंद करते हैं। तो इसलिए जितने भी लोग जो जाते थे ना, वो सबको अरमान होती थी कि उनको क्या मिले, उनकी शहादत की मौत मिले। तो सारे साहबा खुश हो गए कि जब इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले हैं, तो इनको जरूर क्या मिलेंगी, शहादत की मौत मिलेंगी करके। फिर अब इन लोग वहां पर खैबर की तरफ जा ही रहे हैं, खैबर के नजदीक पहुंच ही रहे हैं। तो अब इन लोग है ना, खैबर के एकदम नजदीक में आके क्या किए, रात गुजारे। और इन लोग इतने चुपके से और इतनी बिगर आवाज के आके इन लोग ने रात गुजारे। और जब सुबह हुई, तो सुबह में जो यहूदी लोग थे, उन लोग ने देख लिए, सुबह एकदम सुबह के उजाले में वो कोई बकरा चराने वाला था, जिसने क्या किया, देख लिया कि मुसलमान लोग आ गए। अब इन लोग को खबर है, सब कुछ है, लेकिन इन लोग मतलब क्या थे कि हम लोग तो है ना, बहुत हमारे पास हथियार है, हम लोग बहुत ताकतवर है, तो क्या करेंगे, हम लोग है ना मुसलमानों को आराम से मार देंगे। प्लस उन लोग ने क्या करे थे, उन लोग ने गफ्तान के कबीले को भी उन लोग ने इन्फॉर्म कर दिए, तो वो हमारे को वो हेल्प आ जाएंगी। तो इन लोग इतने तैयार नहीं थे। लेकिन जब सुबह सुबह इन लोग ने देखे, तो क्या हो गया, जो चरवाहा देखा उसने कि मुसलमान लोग जो है एकदम खैबर के करीब आ गए, इन लोग के शहर के बहुत करीब आ गए, तो वो है ना चिल्लाया, और है ना चिल्ला के भागने लगा कि नबी सल्लम आ गए हैं अपनी सेना के साथ, अपनी आर्मी के साथ आ गए हैं करके, वो है ना चिल्ला के भागने लगा। तो जब नबी सल्लम ने ये बात सुने, तो नबी सल्लम ने बोले कि अल्लाह अकबर, खैबर क्या हो गया, बर्बाद हो गया, अल्लाह अकबर, खैबर बर्बाद हो गया। और उन लोगों की सुबह ऐसी ही बुरी सुबह होती है, जो लोग क्या नहीं करते, जो लोग, जिन लोग को जब उन लोग को बताया जाता है, उस पे उन लोग ये नहीं करते, उनको इत्तला दी जाती है और उनको दीन की दावत दी जाती है, फिर भी उसके ऊपर उन लोग ये नहीं करते, तो उन लोग की क्या होती है, उन लोग की सुबह इस तरह से ही बुरी होती है। तो अब क्या हो गया, अब ये यहूदियों को पता चल गया, और जो गफ्तान का कबीला आ रहा था, वो भी क्या हो गया, बीच में उन लोग ने क्या देखे, उन लोग को ऐसा बीच में आने के बाद उन लोग को ऐसा क्या पता चला कि है ना, शायद उन लोग के जो कबीले हैं और उनके जो बीवी बच्चे हैं, उस पर मुसलमान लोग हमला कर रहे हैं। तो उन लोग ऐसी गफलत में ऐसी खबर सुन के उन लोग क्या करे, उन लोग भी आधे रास्ते से वापस पलट के चले गए। तो अब ये जो यहूदी लोग थे, वो अकेले पड़ गए, जो कबीला आने वाला था मदद करने के लिए, वो भी आया नहीं। उन लोगों को ऐसा लगा कि मुसलमान लोग हमारे ऊपर हमला करने जा रहे हैं, हमारी कबीले की तरफ हमला करने जा रहे हैं, तो इसलिए उन लोग अपने कबीले को बचाने के लिए वापस आधे रास्ते से पलट के उन लोग चले गए। अब जो ये यहूदी लोग हैं, खैबर वाले, वो अकेले पड़ गए। अभी जो खैबर जो जगह थी, वो कोई छोटा मोटी जगह नहीं थी। वहां पे है ना बहुत बड़े बड़े किले थे, एकदम बड़े, एकदम मजबूत, अच्छे अच्छे किले थे, और वहां पे बहुत सारे मालो गनीमत सब कुछ था। तो ये बहुत बड़ी सी सिटी थी, ऐसा कोई छोटा सा ये नहीं था, एक अच्छी सी बड़ी सी सिटी थी, जहाँ पे मतलब एक दो नहीं, बहुत सारे उसमें ये थे, किले थे। और सब अलग अलग, जो जो बड़े बड़े अलग अलग लोग अलग अलग किलों में रहते थे, महफूज किले ऐसे थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जंग की पूरी तैयारी हो गई है, और ये जो मुसलमान लोग जो थे, उन लोग ने क्या क्या करे, अपना है ना वहाँ पे ये लगा दिए, कैंप लगा दिए। तो नबी सल्लम ने एक जगह पसंद की कि ये हम लोग यहाँ पे है ना कैंप लगाएंगे करके, हमारा दस्ता यहाँ रहेगा करके। तो उस पर हुबाब बिन मुंदिर जो थे, उन्होंने नबी सल्लम से पूछे कि आप ये अल्लाह की तरफ से वही है यहाँ पे कैंप लगाने, या सिर्फ ये आपका ख्याल है कि यहाँ पे कैंप लगना चाहिए। तो नबी सल्लम ने बोले कि नहीं, ये मेरा ख्याल है। तो उन्होंने बोले कि ये जो जगह हम यहाँ पे कैंप करने का सोच रहे हैं, ये जगह है ना इतनी अच्छी नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम इस जगह पे है, यहाँ पे आगे क्या है, बहुत सारे खजूरों के झाड़ है, तो इससे क्या होएगा, हम तीर नहीं चला सकेंगे ज्यादा,
اور آگے جو यहाँ पे जो किला है वहाँ पे है ना यहूदी के बड़े बड़े सरदार लोग रहते हैं। तो ये जो बड़े बड़े सरदार है उन लोग को है ना हमारी पोजीशन हम किस तरह है, हमारा क्या हाल है, वो उन लोग को अच्छे से पता चलेगा। लेकिन इस झाड़ की आड़ में उन लोग के क्या पोजीशन है, उन लोग किस तरह से, हमको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो ये क्या, ये जगह अच्छी नहीं है यहाँ पे कैंप लगाने के लिए करके। तो नबी वसल्लम ने बोले अच्छी बात है, तुम बताओ कहाँ पर है तो हम वहाँ पे लगाएंगे। तो फिर उन्होंने इसके आगे जो मुनासिब जगह थी, अच्छी जगह थी कैंप लगाने की, वो बताया। तो नबी वसल्लम ने क्या किया, वहाँ पर कैंप लगाया। अब है ना रात का वक्त था, तो रात को नबी वसल्लम ने बोले कि कल सुबह है ना मैं है ना ये जो झंडे का परचम उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर नबी सल्लम रात के वक्त ऐसा बोल रहे हैं कि सुबह में मैं झंडे का जो परचम है, जंग का परचम, मैं उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है। प्लस बदले में देखो, अल्लाह और रसूल से तो सारे लोग मोहब्बत करते हैं, सारे सहाबा, सारे मुस्लिम सब, और साथ में अल्लाह और रसूल उसको मोहब्बत करते हैं। तो ये जो सहाबा लोग थे सब एकदम रात भर पूरे इसमें थे कि सुबह में है ना नबी वसल्लम किसके हाथ में जंग का परचम देने वाले, सब इंतजार में बैठे हैं। और सारे सबको क्या लगता रहेगा कि शायद मैं हूँ, शायद मैं हूँ, शायद मुझे आज जंग का परचम मिले। तो सारे लोग, सारे सहाबा लोग इस आस में बैठे हैं, सब बहुत ये बेताब है जानने के लिए कि किसके हाथ में ये जंग का परचम आने वाला है करके। तो जब सुबह हुई तो सारे के सारे लोग नबी वसल्लम को घेर लिए कि आप किसका नाम लेंगे। सामने आ गए, सब सारे के सारे लोग सामने आ गए, सामने रहना चाहते थे कि हमको देखे और हमारा नाम ले ले करके। सारे सहाबा लोग वहां पे खड़े हैं कि नबी वसल्लम किसका नाम लेंगे और किसको परचम देंगे। तो नबी वसल्लम ने हजरत अली बिन तालिब को बुलाए। तो पता चला रजी अल्लाह अन्हु को, तो पता चला कि वो आए ही नहीं है, क्योंकि उनके आंख में कुछ तरह से उनको तकलीफ लग रही है, तो इसलिए वो आए ही नहीं है। तो फिर नबी वसल्लम ने उनको बुला के भेजे कि जाओ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को लेकर आओ। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आए, तो नबी वसल्लम ने उनको कुछ दुआ पढ़ के फूके आंख में, तो वो अच्छी हो गई। और उनके हाथ में क्या कर दिया गया, उनके हाथ में जंग का परचम दे दिया गया। फिर अब जो है सही में जो जंग होती है वो जंग क्या हो गई, चालू हो गई। अब उसमें से है ना जो सबसे पहला कबीला था, जो ये था फोर्ट था, वहां पे मुसलमान लोग अटैक करने के लिए थे। वो फोर्ट का नाम था नईम, जो किला था उसका फोर्ट का नाम था नईम। तो और ये बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत किला था। तो अब यहाँ पे है ना मरहब करके एक जो आदमी था, और वो मशहूर था, मतलब यहूदियों में मरहब करके आदमी था, उन लोग का लीडर था। और वो मशहूर था तो कि वो एक है ना 1000 के बराबर है, मतलब इतना स्ट्रांग है, इतना बहादुर है कि वो एक आदमी क्या है, पूरी एक आर्मी के बराबर है, एक पूरी आर्मी के बराबर है। वो इतना स्ट्रांग है, इतना ताकतवर है। तो उसने क्या किया, उसने अमीर बिन अकवा को ये किया, बुलाया। मतलब पहले के जमाने में कैसी लड़ाई होती थी कि जो बड़े बड़े लीडर्स होते थे ना, वो आमने सामने आके सबसे पहले लड़ते थे, एक दूसरे को चुनौती देते थे। तो उसने किसका नाम लिया, अमीर बिन अकवा को आके बुलाया। लेकिन जब अमीर बिन अकवा गए तो उनके साथ उनकी लड़ाई हुई, तो लेकिन क्या हो गया, अमीर बिन अकवा रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या हो गया, थोड़ी सी मार लग गई। फिर है ना क्या किए, नबी वसल्लम ने बोला हजरत अली को जाओ करके। तो हजरत अली गए, और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु क्या करे, उनके साथ लड़ाई किए। और है ना उनको क्या कर दिया, आखिर में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथे से वो कत्ल के हो गया। फिर उसके बाद फिर दोनों जो पार्टीज थी उन लोग के बीच में लड़ाई हुई। और लड़ाई होने के बाद फिर बहुत ही इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा लड़ाई होने के बाद आखिर में मुसलमान लोग का कब्जा उस किले पे हो गया। फिर अब यहाँ पे ये यहूदी लोग ने क्या किए थे, अब ये किले पे कब्जा हो गया, तो जो बचे कुचे लोग थे जो भाग सकते थे, उन लोग क्या करे, उन लोग एक पीछे जो और एक था किला, जिसका नाम था नथा करके, जुबैर करके ये था। वहां पे क्या किए उन लोग, उस किले में चले गए। मतलब बाकी जो लड़ाई कर रहे हैं लड़ लड़ लिए, लेकिन उन लोग को पीछे जाने की जगह थी, तो पीछे दूसरे किले में पहुंच गए। अब दूसरे किले में क्या किए, मुसलमान लोग ने उसको पूरा घेर लिया वो किले को। अब वो जो यहूदी लोग किले के अंदर है, और जो बहुत मजबूत किला है, और बाहर से मुसलमान लोग ने क्या करे है,
घेर लिए। अब ये घेराव रख के कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन वहाँ से यहूदी लोग ना कुछ लड़ने के लिए आ रहे, ना यहाँ से मुसलमान लोग लड़ने जा रहे हैं, ये सिर्फ घेराबंदी करके रखे। और पहले के ज़माने में इस तरह से भी लड़ाई होती थी कि क्या किया जाता था, कोई भी किला है उसको घेर लिया जाए। तो अगर घेर लेंगे ना तो क्या होता था, मतलब अंदर खाना-पीना जो है, जो जितना अंदर का है उन लोग उतना ही खाएँगे। आखिर में क्या होगा, भूख और प्यास की वज़ह से या तो उन लोग सरेंडर कर देते, या तो फिर उन लोग मरने से बचने के लिए लड़ना शुरू कर देते। या तो हार-जीत से फैसला हो जाता था, या तो फिर लोग सरेंडर कर देते थे। तो अब यहाँ पे मुसलमान लोग ने 3 दिन तक हो गए, 3 दिन हो गए घेराव करके, लेकिन वहाँ से कुछ सामने से यहूदियों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। ना उन लोग लड़ने के लिए आए थे, ना ही उन लोग सरेंडर कर रहे थे। इतने में फिर एक जासूस ने खबर दे दी कि है ना, ये जो है ना, ये किला है ना, इन लोग के पास खाने का भी बहुत सारा सामान है और इन लोग का है ना पानी का भी सब सारी चीजें हैं। तो इन लोग को अगर आप 1 महीना तक भी इनको घेर के रखोगे ना, तो भी क्या नहीं होगा, इन लोग को कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन ये जो इन लोग को जो पानी है, वो अगर आप जो नीचे से जाता है और वो बाहर से ही जा रहा था अंदर, किले के अंदर, वो अगर उसको आप रोक दोगे ना तो इन लोग को पानी की कमी होगी, पानी नहीं मिलेगा, तो शायद कुछ बात बन सकती है। तो नबी सल्लम ने क्या किए, जो बाहर से जो पानी का जो रास्ता था उसको क्या करे, बंद कर दिए। तो अभी जब पानी का रास्ता बंद हो गया, तो फिर क्या हुआ, आखिर में उन लोग को लड़ने के लिए आना ही पड़ा, क्योंकि उन लोग ने सरेंडर तो नहीं किए, लेकिन उन लोग लड़ने के लिए आ गए। और उन लोग ने बहुत इसमें लड़ाई की है, तो इस लड़ाई में 10 मुसलमान लोग क्या हो गए, शहीद हो गए। लेकिन फिर आखिर में क्या हुआ, जो किला था वो मुसलमानों के हाथों में आ गया। अब ये दूसरा किला भी फतेह हो गया। अभी तीसरा किला जो था उबई करके, वो वो भी इसी तरह से मजबूत किला था। तो यहाँ पे भी मुसलमान लोग ने क्या किए, 3 दिन तक उसको ये करे। और अबू दुजाना जो थे, उन्होंने क्या किए थे, अपने सर पे ना लाल कलर का पट्टा बांधे थे। और ये अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मैंने पहले भी बोल दी थी कि जब भी वो मतलब सर पे लाल कलर की ये पट्टा बांधते, तो मतलब उनका क्या रहता था, या तो वो मतलब एकदम बहादुरी से लड़के वो क्या करेंगे, या तो वो फातेह होके आएंगे, या तो वो अपनी जिंदगी खत्म करके आएंगे, शहादत पा लेंगे, या तो फातेह हो जाएंगे। तो आखिर में उन्होंने क्या करे, उन्होंने जब गए उस किले के लिए और वो इतनी बहादुरी से लड़े कि आखिर में क्या हुआ, जो मुझसे यहूदी थे देख के डर के उन लोग भाग गए। और फिर ये जो किला था वो भी इन लोग के हाथ में आ गया। अब फिर इसके बाद है ना, और एक निज़ार करके था किला, ये भी क्या हुआ, ये भी आहिस्ते-आहिस्ते क्या हो गया, इसको भी इन लोग ने सब अंदर से पूरे यहूदी लोग थे और पूरा घेराबंदी करके रखे हुए थे, और मुसलमान लोग बाहर से थे। और इन लोग की बहुत मजबूत दीवारें थी। तो आखिर में जब इन लोग भी कुछ नहीं किया, इसी तरह से अंदर से घेराव डालने के बाद भी ये नहीं हो, तो फिर नबी सल्लम ने हुक्म दिए कि क्या करो, इन लोग के ऊपर हमला कर दो। और उन लोग के पास जो एक है ना, यहूदियों से ही जो मिला था, कैटapult बोल के बाहर कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, गोले बरसाए जाते हैं। बड़े-बड़े एकदम आयन के, लोहे के बड़े-बड़े बॉल जो रहते हैं, वो दूर से ऐसा फेंका जाता है, वो मशीन के ज़रिए वो है ना फेंके मुसलमान लोग ने। और जो किले की दीवारें थी उस पर जा जाके लग के किले की दीवारें क्या हो रही थी, टूट रही थी। तो जब इतनी नौबत आ गई कि किले की दीवारें टूट रही है, अभी टूटते-टूटते क्या होगी, किला ही टूट जाएगा तो मुसलमान लोग अंदर आ जाएंगे। तो उस बार तब जाके वो सारे यहूदी लोग बाहर आए, लड़ाई करे, और फिर उन लोग ने क्या किया, आखिर में सरेंडर कर दी। अब इसके बाद ये 4 यहाँ के किले फतेह हो गए। फिर अब और भी बाकी था, और भी और एक-एक किला जो था, वो भी है ना मुसलमान लोग ने क्या किए, लोग सारे लोग एक बहुत दूर एक किले में जाके रह गए। तो अब यहाँ पे भी मुसलमान लोग ने इनको घेर लिए। आखिर में मतलब अब क्या हुआ है, खैबर आधे से ज़्यादा खैबर जो है वो सिटी फतेह हो गया है, और कुछ एक हिस्सा बाकी रह गया है। तो अब वो क्या हुआ यहाँ पे है ना, इन लोग ने 14 दिन तक ये क्या करके रखे, यहाँ पे ये करके रखे, घेराव करके रखे। अब ये ज्यादा दिन चला, 14 दिन तक के घेराव करके रखा। लेकिन है ना, ये जो लोग थे यहूदी लोग, ना ही इन लोग सरेंडर कर रहे थे और ना ही उन लोग कुछ लड़ाई कर रहे थे, अपने आप को अंदर ये करते बैठे हुए थे। फिर उन लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। लास्ट में अभी 14 दिन हो गए, तो फिर नबी वसल्लम ने बोले कि इससे पहले जो हमने वो हथियार यूज करे जिससे हम लोग किला तोड़ सकते हैं, अभी हम क्या करेंगे, अब हम ये यूज करेंगे। तो इससे पहले ही क्या हो गया,
एक शख्स जो था किले में से, उसने क्या बोला कि मैं नबी वसल्लम से आके बातचीत करना चाहता हूँ, कुछ सुलह की बातचीत करना चाहता हूँ। तो उसका तो नबी सल्लम ने मंजूर कर ली। इसका नाम था अलवादी करके। तो उसने क्या किया, आया और नबी सल्लम से कुछ है ना नेगोशिएशन के रूल्स जो है सुलहनामा वो बात करने लगा। तो उसने सबसे पहले देखो अभी यहाँ पे हालात देखो कि मुसलमान लोग बाहर खड़े हैं और आधे से ज्यादा खैबर फतेह हो चुका है, कोई कुछ थोड़ा हिस्सा बाकी है। तो उस पे उन लोग आके क्या नेगोशिएशन करते हैं कि देखो ये जो अभी इसके अंदर जितने भी सैनिक लोग हैं ना, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन हम सरेंडर किस शर्त पे कर रहे हैं कि जितने भी सिपाही है उनको आप क्या करोगे, उनको आप उनको जान से नहीं मारोगे, उनको ऐसे ही रिहा कर दोगे। प्लस उनके जो भी बीबी बच्चे हैं उनको भी आप लोग क्या करोगे, उनको भी आप लोग गुलाम नहीं बनाओगे, वो उनके साथ ये कर दिए जाएंगे, उनके साथ वो रिहा कर दिए जाएंगे, उनको छोड़ दिया जाएगा। तो सारे आदमियों को छोड़ दिया जाएगा, सारे औरतें और बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ क्या शर्त है कि जो इन लोग जो कपड़े पहने हुए हैं, जिस हाल में है, बस सिर्फ इस हाल में उन लोग निकल के चले जाएँगे। बाकी का उनका जो भी सामान है, जितना भी सामान है और जितने भी ये है अ, सा ये ज़ेवर है, हथियार है, कुछ भी ये लोग कुछ भी नहीं लेके जाएँगे। बस जो पहने हुए कपड़े हैं, उसमें इन लोग निकल के चले जाएँगे। तो इस शर्त पे सारे जितने भी मर्द हैं, उन औरतें हैं और उनके बच्चे सबको छोड़ दिया जाएगा। करके इस बात पे ये किया गया था। तो नबी सल्लम ने हामी भर दिए, बोले अच्छी बात है। देखो अगर तुम लोग तुम्हारी बात पे हो कि अगर तुम लोग कुछ भी अपना नहीं लेके जाओगे, तो हम क्या करेंगे, हम मंजूर है करके। मतलब नबी सल्लम इतने रहमत वाले थे, इतने रहम दिल थे कि इस शर्त को भी मान गए। लेकिन अब ये जो आया था सरदार, इसका नाम था अबुल हुकैक। तो इसने ये शर्त रखी थी क्या मेरे जो जितने भी सैनिक हैं, उनके बीवी बच्चे सबको छोड़ दो, हम लोग सिर्फ जो कपड़े पहने हैं उसमें हम रिहा होके चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही जो उनके जो एक दो बेटे थे, उस लोग ने क्या किए, उन लोग ने है ना, जो उन लोगों के पास जो खजाना था उसको क्या करने लगे, छुपाने लगे। थोड़े से पहले से 2-2 एकदम बैग भर के जो जवाहरात थे लेके जाके छुपा दिए, क्योंकि उनको कुछ अंदाजा हो गया था कि अब हमारे जो अब्बा है जाके इस तरह से करेंगे, पैसे वैसे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि कोई छुपा दो पैसे ताकि हम लोग क्या कर सके, बाद में आके ले सके। तो ये जो है ये अबुल हुकैक इस किले के बड़े हैं, तो इन्होंने जाके ये करके आ गए। लेकिन उनके जो बेटे जो थे, 2 बेटे पहले से ही थोड़ा बहुत खजाना छुपा चुके थे। और इसमें जो छुपाए थे ना, उसमें से किसका खजाना था, हुए बिन अख्तब। हुए बिन अख्तब कौन थे, जो बनु नदीर के जो ये थे ना सरदार थे, और ये मदीना में रहते थे। अब ये लोग सब बहुत अमीर और मालदार लोग थे, और इन लोग का जो खजाना था, उन लोग के जवाहरात थे, वो मुसलमान लोग जानते थे, क्योंकि उन लोग सब डिस्प्ले करते, तो मालूम रहता था मुसलमानों को कि ये जो है ये शख्स, इसके पास इतना खजाना है। कोई चीजें होती है जैसे कि बहुत यूनिक होती है, ये इन लोग का खजाना है, तो वो जानते थे। तो जब खजाना जब सब हाथ में लगा, तब पता चला कि ये खजाना है नहीं। और ये भी बात पता चल गई कि हुए बिन अख्तब के जो 2 बेटे हैं, वो एक जगह पे, एक वीरान सी जगह पे जाया करते थे, और वो बहुत बार वहाँ पे वो वीरान सी जगह पे नज़र आए। तो ये बात मुसलमानों को पता चल गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, उनके बेटों को बुलाए। अ, उनके बेटे का नाम था किन्ना बिन अर-रबी, और ये इसके बेटे की निकाह किससे हुआ हुआ था, सफिया रज़ियल्लाहु अन्हु से इनका निकाह हुआ था। अब तक ये जब ये यहूदी है, और सफिया रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है, वो हुए बिन अख्तब की बेटी थे। तो उनका निकाह हुआ था, मतलब खैबर फतेह होने के 2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही क्या हुआ था, इनका निकाह हुआ था। अब इनके जो शौहर थे उसने क्या ये है, अमानत में खयानत की है। मतलब बाप ने ज़बान दी कि हम लोग सिर्फ़ अपने कपड़ों में जाएँगे, लेकिन इन्होंने क्या किए, वो सामान चुरा के और छुपा के रख दी। तो उनको लाया गया नबी वसल्लम के सामने। तो नबी सल्लम ने बोल जब उनसे पूछा गया कि तुमने छुपाए हो खजाना, कुछ ये करे हो, कुछ सामान लिए हो, तो उसने क्या, उसने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करा हूँ। तो नबी सल्लम ने बोले कि अगर ये चीज तुम्हारे पास से बरामद हुई, तुम्हारे पास से कहीं से भी, मतलब तुम्हारी कोई भी जगह से बरामद हुई,
तो तुमको हम कत्ल कर देंगे। तो उसने उस पर भी हामी कर दिया कि हाँ, अगर देखो मैंने तो छुपाया, मतलब साफ पलट गया वो कि नहीं नहीं, मैंने तो छुपाया ही नहीं हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं हूँ, मेरे को अगर कुछ मिल गया तो मेरे पास, आप लोग मुझे कत्ल भी कर देना। तो साफ उसने पलट गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले अगर तुम्हारे पास से मिल गया तो हम क्या करेंगे, कत्ल कर देंगे। फिर लेकिन उसी में से किसी ने बता दिया कि जो ये जो है किनान को हम लोग उस है ना जगह पे देखे, वो वीरानी सी जगह है, वहां पर हमने उनको देखे करके। तो वो जगह के पास जाए, मुसलमान लोग गए और आसपास में जरा खोदे और ढूंढे, तो वो खजाना मिल गया। अब उनकी बात क्या हो गई, झूठी है करके मालूम पड़ गई। और फिर क्या किया, नबी वसल्लम ने पहले ही बोले थे कि ये खजाना तुम्हारे पास से मिल गया तो क्या किया जाएगा, तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। तो जो हुए भी नख्तब के जो दो बेटे थे, उन लोग ने ये क्या किए थे, धोखा दिए थे, इसलिए ये दो बेटों को क्या कत्ल कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अब इनकी जो बीवी थी उसको फिर क्या बना दिया गया, गुलाम बना दिया गया, जो बीवी सफिया है। लेकिन फिर बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, इनसे ही निकाह कर ली, बीवी सफिया से नबी वसल्लम का निकाह हो गया था आगे जाके। फिर अब क्या हो गया, अब ये जो था मतलब अब यहाँ पे ना माले गनीमत, फिर नबी वसल्लम ने क्या किया, जो खैबर का जितना माले गनीमत था वो क्या कर दिए, सब लोगों में इस पे तकसीम करे, जितने लोग आए थे उन लोग में बराबर से, वो जैसे कि हमेशा हिसाब होता था, और एक खम्स रख के बाकी जितने भी आए थे उन लोग में क्या किया गया, माले गनीमत तकसीम कर दिया गया। अच्छा, अब ये जो थे आसपास के जो ये यहूदी लोग थे, उसमें से तो इन लोग ने क्या बोले थे कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हमारे कपड़ों के साथ चले जाएंगे। पहले तो इन लोग की ये थी, लेकिन फिर बाद में उन लोग क्या करने लगे, उन लोग नबी वसल्लम के पास आए और उन लोग ने क्या बोले कि है ना, क्या करो, हमको है ना इसी जगह पे रहने दो, और हम क्या करेंगे, हम जो हमारी जमीनें थी उसको हम क्या करेंगे, खेती करेंगे, पुरोएंगे और ये सब करेंगे, और उसका हिस्सा हम क्या करेंगे, मुसलमानों को देंगे। तो नबी वसल्लम ने क्या किया, ये बात भी इन लोग की मान ली। तो कुछ लोग है ना खैबर में रह गए, जो उन लोग क्या करते थे, जिन लोग के बागात थे, बागात में जो काम करने का था ये सब काम कर देते थे, और एक हिस्सा एक जो मुकर्रर कर दिया गया वो क्या था, वो मुसलमानों में जाता था। तो अब ये किस लिए नबी वसल्लम ने देखो इन पे इतने रहम दिल किए कि इन लोगों ने जब बाकी ये किए, बोले कि हमको इस तरह से रहने दो, ताकि हम क्या करें, हम है ना जो बागात है उसमें काम वाम करेंगे, और बाकी हम आपको उसका हिस्सा दे देंगे। और देखो ये जो लोग यहाँ पे रहते थे खैबर में, तो इन लोग का काम ही ये था, गार्डनिंग करना और खेती बाड़ी करना, तो इन लोग को इसका अच्छा नॉलेज था, तो नबी वसल्लम ने इसलिए उन लोग को यहाँ पे रहने दिए। प्लस जो इतने भी सहाबा थे उन लोग को इसका इल्म भी नहीं था, प्लस इन लोग को इतना वक्त भी नहीं था कि इन लोग आके यहाँ पे बस जाए और खेती बाड़ी करे। तो इन लोग, तो नबी वसल्लम ने इसलिए इन लोग को रख दिए। तो अब ये यहाँ पे क्या बात तय हुई कि जो भी खर्चा है करने का, बागात का देखभाली करना, ख्याल रखना और पिरोना और सारा काम करना, ये सब ये इन लोग यहूदी लोग करेंगे, और उसकी एवज में एक थोड़ा सा हिस्सा इन लोग को मिलेगा, मतलब समझ जाओ 1/4 इन लोग का रहेगा और 3/4 किसका होगा, मुसलमानों को होगा। तो इस बात पे ये हो गया। तो नबी वसल्लम ने इस तरह से वहां पे ये कर दी। और फिर है ना यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को यहाँ पे ना इस खैबर फतेह के बाद है ना बहुत ज्यादा माले गनीमत आया। इससे पहले इससे क्या हाल था कि बहुत है ना, ज्यादातर मुसलमानों को क्या होती थी, खाने पीने की किल्लत होती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या था, रेगिस्तान, मक्का मदीना, मक्का तो एकदम ही ये एरिया है, मदीना में तो खजूरों के दरख्त है, लेकिन फिर भी मतलब वहाँ के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से इतना ज्यादा ये वहाँ के लोग ये नहीं कर सकते थे, ज्यादा अनाज उगता नहीं था, ज्यादा खजूर है और उसको फिर पूरा साल भर तक उसको संभालना ये नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे अभी जो खैबर था, ये एक ऐसा एरिया था कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें मिलती थी। तो अब यहाँ पे, और इसके बाद वहाँ पे इस तरह से डिसाइड हुआ था कि क्या होगा, कि इन लोग 1/4 यहूदी लोग अपने लिए रखेंगे, बाकी 3/4 क्या होगा, मुसलमानों को दिया जाएगा। तो इसलिए क्या होने लगा था, बाद में भी क्या होने वाली थी, वहां से परमानेंट आमदनी आने लगी थी मुसलमानों को, कि इतना हिस्सा आएगा, फिर वो मुसलमानों में तकसीम हो जाता था। तो खैबर के बाद बोला जाता है, कितनी बीबी आयशा और कितने लोग से रिपोर्ट है कि खैबर फतह के बाद हम क्या करने लगे,
हमें ना मुट्ठी भर खजूरें मिलने लगी खाने के लिए, वरना मतलब उससे पहले इन लोगों का कैसा गुजारा होता था, 1 खजूर, 2 खजूर और फाकों पे गुजारा होता था। खैबर के बाद इनको क्या होने लगा, मुट्ठी भर खजूरें मतलब पेट भर खाना नसीब होने लगा था। फिर नबी वसल्लम ने जो बाकी के जो दूसरे मवेशी और ये सब था उसका भी जब हिस्सा किए, तो जो ये थे घोड़े वाले थे, उन लोग को 3 हिस्सा और जो पैदर थे उन लोग को 1 हिस्सा, उसके हिसाब से बराबर से ये दिया गया, हिस्सा देके बराबर से ये कर दिया गया। अब इसी के बाद है ना जो हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु है ना, वो आए वहां पर आए, तो नबी वसल्लम हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु को देखे और खड़े हुए, खुश हुए और उनको सर पे ये भी दिए, और उसके बाद बोले कि मुझे आज है ना ये नहीं समझ में आता कि खैबर फतह होने की ज्यादा खुशी है कि जाफर रजी अल्लाह अन्हु के आने की ज्यादा खुशी है। और हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु कौन है, अबू तालिब के बेटे हैं और कजिन है नबी वसल्लम के, हजरत अली के भाई है, और जो सबसे पहले हमने पढ़े के एबीसीनिया में सबसे पहले जो गए थे ये वही साहबी है। तो वो और इनके बारे में कहा जाता है कि ये है ना नबी वसल्लम से है ना बहुत ज्यादा मिलते जुलते भी थे, मतलब उनकी झपक में ना नबी वसल्लम की झपक आती थी, क्योंकि वो चचा जात बेटे भी हुए, तो और मतलब ये चले गए थे, हिजरत करके चले गए थे अबिसीनिया, और अब वापस इतने सालों के बाद मुलाकात हुई है, तो नबी वसल्लम उनसे मिलके बहुत खुश हुए। और वो बता रहे कि आज है ना मुझे समझ में नहीं आता कि खैबर फतेह होने की खुशी ज्यादा है या जो जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु से जो मेरी मुलाकात हुई, उसके ज़्यादा खुशी ज़्यादा है करके। तो इस तरह क्या हो गया, जो खैबर था वो फ़तह हो गया। अभी अज़ान हो रही है तो मैं एक थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, फिर बात करूँगी। रज़ी अल्लाह अन्हु के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। अब जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अबू मूसा अल-अशरी सहाबी वो भी आए थे। जो अबू मूसा अल-अशरी जो सहाबी है वो यमन से आए थे, और यमन से आके वो कहाँ पे रुके थे, अबिसीनिया, अबिसीनिया में रुके थे, और ये अबिसीनिया में उन लोग उनकी मुलाकात किससे हुई, जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु से मिली। और उनका कहना है अबू मूसा अल-अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु का कि मैं वहाँ पे ही मिला, वहाँ पे ही था इथो अबिसिनिया में, जब तक हमको ये खबर नहीं आई कि हमको वापस आना है मदीना। और इसके बाद जब हमको खबर आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बुलाया, तो फिर हम लोग वहाँ पे मिल के वापस आए। अब इससे पहले जब मैंने बताई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखे थे अबिसिनिया के राजा को, कि जो सबसे इस्लाम की दावत दिए थे, और उनको बोले थे कि जो मेरे भाई जाफर है उनको क्या कर दिए करो, भेज दो। तो इस खत के जवाब में जो राजा जो था उसने क्या किया, अबिसिनिया का जो राजा था उसने क्या किया था, इस्लाम भी कबूल कर लिया था, प्लस फिर उन्होंने क्या किया था, जो मुस्लिम हुए हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाए हैं, तो सारे मुसलमान लोग वापस मदीना की तरफ रवाना हो गए थे। तो उनके साथ हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु, मतलब कहा जाता है कि पूरे के कुछ 16 आदमी थे और उनकी बीवी बच्चे भर के 2 बोट वहां से अबिसिनिया से आए थी मुसलमानों के साथ मिलने के लिए वापस। और उसके बाद फिर थोड़े लोग वापस और थोड़े फिर मदीना में आए थे। तो ये सारे लोग जो इससे पहले जब हमने कर चुके कि जो खत दिया गया था उसके जवाब में उस वो राजा मुसलमान भी हुआ, प्लस उसने जो जाफर रजी अल्लाह अन्हु को भेज दे, तो उनके साथ अबू मूसा लश्करी जो कि यमन में रहते थे वो भी मदीना आ गए। फिर अब है ना हम देखते हैं कि जैसे वो किनान जो था उसने क्या किया, गद्दारी किया, तो उसको कत्ल कर दिया गया, और उनकी शादी है ना खैबर फतेह होने के 2-4 दिन पहले ही सफिया रजी अल्लाह अन्हु से हुई थी, जो क्या थे अ, इनके इनकी ये थी हुए बिन अख्तब की बेटी थी। तो अब ये इनको बंदी बना के ला लिया गया। तो लेकिन उनको है ना दिहल अल कल्बी के इसमें आए थे, वो गुलाम बन के उनके हाथ में आए थे। लेकिन बाकी जो दूसरे लोग थे मुसलमान लोग, उन्होंने क्या बोले कि सफिया रजी अल्लाह अन्हु क्योंकि वो है ना इनकी बेटी है, सरदार की बेटी है, तो नबी वसल्लम को क्या बोला गया कि आप क्या कीजिए, इनसे निकाह कर लीजिए। तो नबी वसल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी है, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिए। तो नबी वसल्लम ने उनको आजाद करके उनको अपने निके में ले लिए।
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت دی جس میں کھجور اور بارلی دی گئی تھی. اور یہ ہے نا جب ان لوگ سب واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو جگہ ہے شاد الصحابہ، اس جگہ پہ یہاں پہ ولیمے کی دعوت دی گئی تھی، یہاں پہ ان کا نکاح ہوا تھا. پھر یہ جو خیبر کے جب فتح سب ہو جانے کے بعد وہاں پہ جو ایک عورت تھی، یہودی عورت تھی جس کا نام تھا زینب بنت الحارث. تو اس نے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو دعوت دی اور اس نے ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھنا ہوا بکری لا کے دی اور اپنے گھر میں بلا کے سارے صحابہ اور سب لوگ آئے اور بھنی ہوئی بکری اس نے پیش کی. اور اس نے کیا کری تھی، اس بکری میں زہر ڈال کے رکھی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، ایک لقمہ صرف منہ میں لیے اور ان کو اچھا نہیں لگا تو تھوک دیے. اور اتنے میں ان کو خبر بھی آ گئی کہ اس کو مت کھاؤ، اس میں کیا ہے، اس میں زہر ہے. تو اس کے بعد ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا، جیسے خبر ملی تو سب صحابہ کو روک دیا گیا. تو سب نے پھر کسی نے بھی کھائے نہیں کھانا. لیکن ایک صحابی نے کیا کیے، بشت بن البرہ، وہ کیا کر چکے تھے، وہ لقمہ نگل چکے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ عورت کو کہ تم نے ایسا کیوں کیے، کیوں ہم لوگ کو مطلب اس طرح سے بلا کے دعوت دے کے زہر والا کھانا کیوں دیے. تو وہ عورت نے کیا بولی کہ اگر ہے نا دیکھو، اگر کیا آپ نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، تو آپ کو کسی بھی طرح سے پتا چل جاتا تھا اور آپ یہ کھانا نہیں کھاتے تھے. اور اگر کہ آپ راجا بننا چاہتے ہو، ہمارے پہ حکومت کرنا چاہتے ہو، تو کیا ہوگا، تو آپ کھا لو گے اور پھر کیا ہوگا، ہم کو آپ سے نجات مل جاتی تھی. میں میرے قوم اور ہمارے لوگوں کی بھلائی کے لیے میں نے ایسا کام کی. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ اس نے کیے اس کے لیے تو معاف کر دیے، لیکن وہ بشر البرہ جو تھے انہوں نے کیا کیے، وہ کھا لیے تھے نا کھانا، تو ان کی موت ہو گئی. تو ان کی موت کے اس میں الزام میں اس عورت کو قتل کر دیا گیا. لیکن یہ جو زہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کا ایک لقمہ صرف چکے تھے، لیکن اتنا یہ پوائزنس تھا، اتنا زہریلی تھا کہ دیکھو ان کے ایک صحابی تھے، انہوں نے تو صرف کیا کرے، وہ کھا لیے تو ان کی وہیں پہ وہیں لقمہ نگل گئے تو ان کی وہیں پہ وہیں کیا ہو گئی، موت ہو گئی. لیکن جب آخری وقت جب آتا ہے تو محدثین بولتے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ زہر کا جو لقمہ کھائے تھے تب تو افیکٹ نہیں کیا، لیکن ان کے موت کے وقت کیا تھا، اس زہر کے وجہ سے بھی ان کی موت تھی. مطلب اس میں کچھ یہ تھا کہ اس وقت بھی جو زہر کھائے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ جو زہر میں نے کھایا تھا اس کا مجھے یہ لگتا ہے، اثر لگتا ہے کر کے. تو آج ہم لوگ کیا کریں گے، آج یہیں تک کا رکھیں گے. اور میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.